Hi everyone, welcome to the channel Simple Concepts. I am Rashmita and I'm back with another lecture series और ये lecture series based है हमारे polity section पे. So the very first lecture that I'm going to deliver in this lecture, I'll be covering the union and its territories. So इस lecture में हम लोग article 1 से 4 तक cover करेंगे. So what is special about this lecture is कि हम इसमें सारे आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि व्हाट डज द एक्चुअल लैंग्वेज of article 1 to 4 says and how do we interpret it because sometimes it happens कि यूपीएससी में सीधा आर्टिकल की लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं एंड इफ यू हैव जस्ट read the gist of it so it becomes very difficult to answer that particular question. So we'll be covering each and every word and everything that is given in that particular article with appropriate examples and everything, every explanation, like it's in detail. Okay, so it is more based on the mains answer writing than the prelims. If you want to see a video like a revision video, as you all know, very few days are left for your UPSC. Okay, so you can go to our channel and watch another video which is like a gist for the union and its territory. It is for the revision purpose, and this particular lecture I'm making for your prelims as well as mains exam so that you get a thorough knowledge of आर्टिकल 1 to 4 कि हाँ जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से 4 में ये लिखा है और हमें एक एक सेक्शन पे क्लैरिटी है कि हाँ इसमें इस वर्ड का मतलब ये होता है. बिकॉज इवन इफ यू आर कंफ्यूज विद वन वर्ड तो आपका आंसर पूरा का पूरा चेंज हो सकता है. एंड यू नो कि अगर आपका एमसीक्यू में अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ या आपने कुछ भी गलत सोच के लिख दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. देयर इज नो स्कोप कि ठीक है आपने एक वर्ड को थोड़ा गलत लिख दिया, थोड़ा सही लिख दिया तो एग्जामिनर आपके सही पार्ट पे नंबर दे देगा या गलत पे काट देगा. नो, इट्स लाइक द टोटली रॉन्ग क्वेश्चन. ओके, सो लेट अस बिगिन. आई होप आई एम क्लियर कि हम इस पूरे लेक्चर में क्या कवर करने वाले. वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 with the language that is being written in Indian Constitution. So before beginning, there is a prelims revision carnival for UPSC CSE 2020 which is going to be held on 22nd of August 2020. So what you will be getting in this particular carnival is that you will get 400 plus free live classes. You all know कि Unacademy जो है it's a very trusted platform, it's a wonderful platform for the preparation of UPSC. Okay, so you know all of the amazing educators that are there on Unacademy. So there are like 400 plus free live classes that you will get if you register for this carnival. Okay. Yes, so now less than 47 days left. Complete your preparation for UPSC CSE 2020, 2021, 2022 with Unacademy. So as you all know कि अब जो UPSC का पेपर आ रहा है उसमें there are like 47 days left. So you can prepare with Unacademy for your upcoming UPSC paper or for 21 like 2021 and for 2022 we have got all of these batches. There are like number of lectures, there are like vast syllabus coverage and you will get amazing educators who will help you cover entire syllabus. Even if you are planning to give your UPSC exam in 2022 you can still join us on Unacademy so that you know आपको time मिल जाए कि ठीक है 2 साल में I can actually prepare for UPSC CSE because it's not a very you can't say कि it's a difficult exam or it's a easy exam. It's very unpredictable कि आपसे क्या पूछ लेंगे UPSC CSE में. So with the educators of Unacademy, like the experienced educators of Unacademy, you can actually prepare for UPSC CSE and this is a very trusted platform. So Unacademy Aspire All India Free Mock Test for Civil Services Aspirant UPSC CSE Prelims 2020 and Paper 1 GS 6-month scholarship to 5 ranks. So this is a particular mock test. अगर आप इसमें top 5 ranks में आते हैं you can actually get 6-month scholarship for joining Unacademy. So this mock test is on 23rd of August at 10 a.m. So you can enroll it for now. Okay.
do not miss it, because it's a great opportunity, so that you can get a scholarship and then prepare with the Unacademy, and then crack your UPSC as your dream is. Okay, so what all you'll be getting with the subscription? Okay, if you subscribe to Unacademy, what all you'll be getting? So you'll get like unlimited benefits. So first of all, you'll be getting learn live from the comfort of your home, which is very important during this corona time also. As you know कि अभी ये हो गया है, कल को कुछ और हो जाए, भगवान ना करे, ठीक है, लेकिन फिर भी it's like if you are preparing for you from your home, it becomes very easy कि you can actually watch your lectures whenever you have time. You have that comfort कि ठीक है, आपको क्लास में नहीं जाना है, आपको ट्रैवल नहीं करना है, आपका ट्रैवलिंग का टाइम बचता है. सो दिस इज़ अ वेरी जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमें प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ये वो बेनिफिट है हमारे पास, टू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. Second is unlimited access to all courses. So once you subscribe for Unacademy, you will get unlimited access to all courses. Next, what you will be getting is top educators from India on one platform. I'm telling you, these educators are amazing, amazing, amazing. Like आप किसी को भी देख लीजिए, इतने सारे educators हैं. They are like wonderful teachers. They will help you prepare for your exam thoroughly. Okay, so you'll be getting top educators of India on one platform. You cannot have to go you don't have to go to different coaching institutes for different subjects. Like sometimes it happens कि ठीक है, इस कोचिंग में ये वाले टीचर इकोनॉमी के टीचर अच्छे हैं, इस कोचिंग में पॉलिटी के टीचर अच्छे हैं, एंड you don't have the benefit of like कि अगर हम इस वाली कोचिंग में चले गए तो हमारा पॉलिटी तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन हमारा इकोनॉमी कमज़ोर रह जाएगा. सो ये जो इशू है, ये अनअकैडमी के साथ नहीं आता, बिकॉज यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज. सो आपको जिस टीचर के साथ कंफर्टेबल लगे, आप उसकी क्लास अटेंड कर सकते हैं. दूसरा, देर आर लाइक टॉप एजुकेटर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड दे टीच अमेजिंग. आपको कोई इशू आने ही नहीं वाला है. Next thing what you'll be getting is exhaustive coverage of syllabus. So as I've already told you कि आपका पूरा का पूरा syllabus वो लोग cover करा देंगे. You don't have to panic कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ. They will cover the entire syllabus for UPSC CSE. Next is regular doubt clearing sessions. So you'll be getting doubt clearing sessions. So if you have if you have already used Unacademy, so you might be knowing कि आप तुरंत के तुरंत कमेंट करके या लाइव क्लास पे लिख के आप पूछ सकते हैं अपने जो भी डाउट्स हैं. नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज. सो यू विल बी गेटिंग मेनी टेस्ट सीरीज. सो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा. You will also be getting study material in PDF format. So if your teacher is teaching anything, your educator is teaching anything, and you're afraid कि ठीक है मैं note down नहीं कर पाया जब वो पढ़ा रहे थे, so you don't have to get scared, because you will be getting all of the study material in PDF format. Also you will be getting answer writing sessions. So this is very important, because everyone knows कि mains में you really need to have a good answer writing skill to clear UPSC. So you will be getting answer writing session. So if you like begin from very initial point के ठीक है हम अभी से आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर देते हैं. So जब तक आप प्रिपेयर करेंगे, जब तक आपका यूपीएससी का एग्जाम आएगा, you will get skilled in this answer writing. Okay. Next is mentorship and guidance. So if you have like any doubt or anything, so you can ask your educator anytime you feel comfortable. Okay, so it's a very good platform to prepare for. It's like a one-stop solution for complete UPSC CSE preparation. Like you get structured batches with top educators. You also get batches in Hindi, English and in bilingual. Like some people have problem के ठीक है हमें English नहीं आती है जी, हमें हिंदी में पढ़ा दो. So you will get batches in Hindi also or in bilingual. Okay, like both English and Hindi. And there are like some regional languages also. Okay, if you know Marathi, so there are courses in Marathi language as well. Late night as well as 2-year batch. So you will get like लेट नाइट बैच के, अगर आप जॉब करते हैं तो आप लेट नाइट वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए, आप रात को आके प्रिपेयर कीजिए. या फिर अगर आपको थोड़ा टाइम है कि नहीं अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, सो वी ऑल्सो हैव लाइक 2-year बैचेस. Also 100% syllabus coverage. I have already told you, vast range of optionals. You can also enroll for the optional subject batches. Okay.
prelims test series with evaluation. You also get, you know, once you give your test, then also you get the evaluation के तुमने क्या गलत किया, like how much do you need to prepare and everything. Same you will get for the mains test series. Next is dedicated doubt clearing classes. As you all know कि they are very dedicated to the doubt clearing sessions because it is very important कि आपका एक एक doubt clear हो. Otherwise you will get confused कि मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ. Okay. Next is daily current affairs practice. Okay. So current affairs से आपको updated रहना है. They will also give you practice questions of current affairs daily so that you get updated with what is happening around you. Essay and answer writing practices, as I already told you. Your performance analysis कि आपने किस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, so that you get to know better कि मुझे कितना पढ़ना है और मुझे कौन से जो सेक्शंस है वो मेरे वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है. Also you get the interview preparation tips. Okay, so this is also very important because you all know it's like this exam helps for like you know in 3 stages. तो इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन नॉट क्लियर दिस इंटरव्यू until unless you have some tips. There are always when you go for an interview there are certain tips for each and every, like even if you go for you know MBA का interview, when you get like into IIM and all, so there is a trick, like everybody knows there is a trick for every interview. Okay, so that trick for UPSC interview you will get in these courses. So these are the different batches that are going to start. So this Mission UPSC CSE 2021 is going to start from 24th of August 2020, and this Lakshya UPSC CSE, this is in Hindi. Okay, this is also going to start on 24th of August 2020, and there's a like full year batch course. This is for 1 year, full syllabus coverage, टॉप एजुकेटर्स, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी विद एनालिसिस. ओके, सब इंक्लूडेड है. बट इफ यू गो टू लाइक यू नो कन्वेंशनल कोचिंग क्लासेस, सो फॉर द टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग यू हैव टू टेक अनदर कोर्स, पे एक्स्ट्रा. सो इसमें आपको बेनिफिट है कि आपको इसमें प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इन कोर्सेज में ही मिल रहे हैं. Next batch is Expedition UPSC CSE 2021. This is also starting from 24th of August. Full year batch course, top educators. You will also get PDF study material, dedicated doubt clearing sessions and interview preparations. And this is Expedition UPSC CSE 2020. So this is going to start from 21st of August 2020. This is a 2 years batch. Okay, full syllabus coverage for the people who are planning to give their UPSC exam in 2022. They can join this course with top educators, prelims and mains test series, PDF study material, dedicated doubt clearing session. I've already told you all about this. I don't have to emphasize more on this. Okay. Also, if you use our code SIMPLEYT, you will get extra 10% discount. Okay, although the fees is not that much, but you know it's always better कि हम और कम पे करें. So if you use our code SIMPLEYT, so you are going to get 10% extra discount. So for example, if your 24 months course is for 64,000 and you apply our code SIMPLEYT, so this course you will get for like 57,600. So it's a good deal, yeah. There is a T20 daily current affair test series. This is for free. Everybody can actually go for this test series. You will get this daily at 7:30 p.m. You will get 20 questions, and for that you will get 20 minutes to solve. It is of 40 marks, and you will also get the test analysis के मतलब आपने क्या चीज़ें गलत की हैं and everything, like what was the right answer, why have, like आपका कितना स्कोर है और बाकी सब में आप कितना पीछे हैं, like you will get the rank and everything. So this T20 daily current affairs test series, which is for free, is going to help daily on 7:30 p.m. So do not miss it out. Please remember the time, 7:30 p.m. every day, daily. Okay. You can also join our YouTube channels, and you can follow us on Facebook and Telegram. So these are our channels. These are the information of Unacademy Articulate. This channel is for Unacademy UPSC Current Affairs, and this is for Unacademy Lakshya UPSC CSE. This is for, I guess, Hindi. Okay, and this UPSC CSE mock interview, the last mile. You can actually go to YouTube and search for these channels, and you can join them anytime.
This is a UPSC preparation by Unacademy on Facebook. So if you use Facebook, so you can actually follow us. You will get a lot of information. Okay, when are you going to get discount? What are the current affairs and everything? You will get updated about the UPSC preparation. Next is our Telegram, Unacademy Articulate. Okay, you can also join this Telegram group. You can also join our Telegram group, which is SIMPLE Simple Concepts UPSC. So इसका जो लिंक है वो वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, बट स्टिल यू कैन एक्चुअली go to your Telegram group and Telegram, उसमें ऊपर search option में you can write Simple Concepts UPSC and you will get a group. So in this group we actually give the PDF and PPTs that I'm creating, that जो भी मैं lectures deliver करूँगी उन सब के PPTs और PDFs मैं उस group में दूँगी. और जितने भी और एजुकेटर्स हैं हमारे वेबसाइट पे, हमारे चैनल पे, उन सब के भी आपको जो PPT और PDFs है वो हमारे ग्रुप पे मिल जाएंगे. ऑल्सो यू विल गेट current affairs and everything related to UPSC regularly, test series and everything on our Telegram channel. So please join this channel. So now let us begin with the lecture. Okay, so first of all we are going to learn about article 1 के article 1 में क्या क्या दिया है और उसका मतलब क्या क्या है, like what does each and every word actually says. So article 1 is about the name and territory of the union. So the clause 1 of article 1 says India, that is Bharat, shall be a union of state. Clause 2 of this article says the states and the territories thereof shall be specified in the first schedule. And the clause 3 of this article says the territories of India shall comprise A. the territories of the states, the union territories specified in the first schedule, and C. such other territories as may be acquired. So let us see कि जो clause 1 है वो हमें क्या क्या बताता है. So it says India, that is Bharat, shall be a union of states. So what does it suggest? So first of all it suggests name of the country. जो हमारी पहली लाइन में दिया है, both India as well as Bharat are taken as the name of the country. So ऐसा क्यों कि हम या तो इंडिया अडॉप्ट कर लेते या भारत अडॉप्ट कर लेते, लेकिन हमने दोनों को क्यों अडॉप्ट किया है. So if you go and read the debates of Constituent Assembly, there's a particular book. If you like to read a lot, you can go to Amazon and order that book. So all of the debates that actually happened during when our constitution was passed, so उसमें सारे के सारे debates दिए हुए हैं. So उसमें एक debate है कि इंडिया को as a name of union adopt किया जाए या भारत को adopt किया जाए. So there were clashes. Okay, some people were suggesting कि नहीं, इंडिया को एक modern नाम मिलना चाहिए, so it should be India. Okay, and some were suggesting कि नहीं, like our country is traditional, so जो नाम होना चाहिए हमारी कंट्री का, it should be traditional, that is भारत. So there were clashes between both the groups. So finally किस conclusion पे पहुंची Constituent Assembly के दोनों नाम को अडॉप्ट किया जाएगा, both India as well as Bharat then were taken as the name of the country. That is why we always say India, that is Bharat. Okay, के दोनों में conflict ना रहे कि हम इंडिया ही बोले या भारत ही बोले. You can actually call it India, or if you like you can call it Bharat. Next, it suggests the type of polity that we have, like the polity that we have in our country. So it's a union of state. Okay, what is the meaning of union of state? कि सब जो states हैं हमारे उनका एक union है India. Why this union of states was used instead of federation of state, even when the constitution is of the federal nature. So if you have seen our previous videos on basic salient features of constitution, so उसमें आप notice करेंगे कि जो हमारा constitution है, it's a federation, like it's a federal constitution, like उसमें state को भी power दी गई है, उसमें union को भी power दी गई है, so it's of a federal nature. Then why didn't we adopted the name federation of state and we adopted union of state? So the reason was कि if you notice America, ठीक है, अमेरिका में भी जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन्होंने मिलके एक यूनियन बनाया है, बट दे आर कॉल्ड एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, बिकॉज
उनके बीच में एक देयर अ एग्रीमेंट के उन सब ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया, एवरी कंट्री सबमिटेड सम ऑफ देयर राइट्स टू द यूनियन, के ठीक है इन सब चीज़ों के ऊपर आप एडजुडिकेशन कर सकते हैं और ये सारे जो पावर्स हैं ये हमारे खुद के पास रहेंगे, ठीक है। बट इंडिया में there was no such agreement that was signed between the union and the states कि हम आपको पावर सबमिट कर रहे हैं या हम मतलब ये वाला पावर अपने पास रखेंगे। there was no such agreement as was in the case of America. Okay, so that is why India is known as Union of States. Also ये Union of States इसलिए भी यूज़ किया गया बिकॉज इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको सीड करने की पावर नहीं है। लाइक दे कैन नॉट से टुमारो कि नहीं नहीं हमने एग्रीमेंट साइन किया था तो अब हम अलग होना चाहते हैं आपसे। दे डू नॉट हैव दिस पावर, वो अलग नहीं हो सकते। सो द इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ओके, आप नक्शा चेंज कर सकते हैं। लाइक यूनियन हैज़ द पावर टू चेंज द मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, कि आप किसी स्टेट को छोटा कर सकते हैं, किसी स्टेट को बड़ा कर सकते हैं या उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकते हैं। बट स्टेट्स डू नॉट हैव दिस पावर ऑफ seceding itself from the Union of States. That's why it is called as Union of States and not the Federation of States. Also, the Article 1 contains what shall comprise within Indian territory. So, the names of states and UT are mentioned in first schedule. So, this is the all like if you see clause 3, so इसमें दिया गया the territory of India shall comprise the territories of the state. Also, it is mentioned कि ये जितने भी states या territories हैं ये schedule 1 में लिखे जाएंगे, ठीक है। So this is all that is being given in Article 1. Also, if you notice one thing, जो हमारा clause 1 है उसमें हमने लिखा है shall be a union of state. बट जब हम clause 3 पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है the territories of India shall comprise the territories of the state, the union territories specified in first schedule and such other territories as may be acquired. So India being a sovereign country has the power to acquire any territory, okay, by like जो भी international methods हैं, like by this agreement or by occupation or by secession, ठीक है, इन सब चीज़ों से इंडिया जो है वो फॉरेन टेरिटरी को भी एक्वायर कर सकता है। ये पावर है इंडिया के पास अंडर आर्टिकल 1. सो दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर यू कैन से टर्म than this union of state. So this union of states contain only the states, okay, union of states, and the territory of India contains all the states, all the union territories and such other territories it may acquire. Okay, कि अगर फ्यूचर में इसमें आर्टिकल में ये भी दिया हुआ है कि अगर फ्यूचर में इंडिया कोई टेरिटरी एक्वायर करता है सो इट विल कम विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, रिमेंबर दिस डिफरेंस। यूनियन ऑफ स्टेट इज ओनली स्टेट्स, कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम मिला के यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। ऑल्दो इंडिया कैन एक्चुअली include any territory it wants as a union of state and this. So this is we are going to talk about in article 2. I hope article 1 is clear कि article 1 हमें सबसे पहले बताता है कि इंडिया का नाम, okay, इंडिया that is भारत. Second, it says कि all of the states and territories which are there in India should be specified in first schedule. And this clause 3 tells us about the territories of India, के territories of India में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सो इट विल कवर टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो, द यूनियन टेरिटरीज दैट आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज इट मे एक्वायर इन फ्यूचर. So now coming to Article 2. Now let us understand what does Article 2 says. So Article 2 basically says admission or establishment of new states. Okay, कि जो भी हम कोई भी नया स्टेट है उसको हम कैसे एडमिट करेंगे इंडियन यूनियन में या फिर इस्टेब्लिश करेंगे. सो इट सेज पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट टू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स fit. So first of all, this article 2 confers two powers on the parliament.
Okay, that is the power to admit into the Union of India new states, and the second, power to establish new state. So what is this? What is the difference between admission and establishment? So admission is कि there is already a state, ठीक है, already एक बना बनाया state है, हमने उसको अपने under admit कर लिया. Okay, this is the admission of state. And the establishment of state is कि हमने पहले एक state को establish किया है, उसके बाद हमने उसको Indian Union में admit किया है. Like the power to admit into the Union of New India, this is Sikkim. Okay, so let's talk about the case of Sikkim. So Sikkim जो था, it was an independent state. Okay, चोग्याल रूलर्स के अंडर ये स्टेट था. उसके बाद इंडिया ने सिक्किम को अपने यूनियन के अंडर इंक्लूड किया. सो इट वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टेट, ठीक है. इंडिया ने सिक्किम को एस्टैब्लिश नहीं किया, उसको बनाया नहीं है. बट द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, ओके, सो द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट इज कि आपने किसी यूनियन टेरिटरी को पहले स्टेट बनाया, उसके बाद आपने उसको इंडिया में इंक्लूड किया, या कोई भी और टेरिटरी है, ठीक है, नॉट union territory, like any other territory that you have acquired or anything. So first you have to establish as a new state, and then only you can admit it into Union of India. Okay, because here is mentioned के यहाँ पे territory of India नहीं mention है, यहाँ पे union mention है. Parliament may by law admit to the union. Okay, so as I have told you in article 1 के union में establish करने के लिए, union is like the union of states. So if you are going to establish a new state, so you have to first acquire that territory, then establish it into a state, and then you can admit it into the union. और जो admission है उसमें हम already एक established state को Indian Union में admit कर लेते हैं. So now coming to Article 2A, Sikkim to be associated with the Union. So this was actually repealed. Okay, ये law हटा दिया गया था. So what happened was कि initially there was an agreement कि सिक्किम को हम एज एन एसोसिएट स्टेट को एसोसिएट स्टेट की तरह बेसिकली हम उसको अडॉप्ट करेंगे या एडमिट करेंगे इंडियन यूनियन में. बट दिस डिडंट वर्कड आउट वेरी वेल. देयर वर लाइक सर्टेन प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लॉज इधर उधर करने पड़ते, और आर्टिकल 2 में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था. लाइक देयर वाज, आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी एसोसिएट स्टेट करके कोई टर्म नहीं है. सो इट वाज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल कि जब एसोसिएट स्टेट नाम की इंडिया में कोई चीज़ ही नहीं है, सो हाउ कैन यू एक्चुअली गिव अ स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट टू एनी स्टेट. सो दिस वाज रिपील्ड. Okay, Article 2 also provides the power to Parliament to set such terms and conditions that it may deem fit. So इसमें इसमें Parliament को एक power मिली हुई है. If you read this, on such terms and conditions as it thinks fit, के Parliament को जो terms and conditions ठीक लग रही हैं. Okay, so it means it can differ state to state. For example, कल को हमें एक territory मिलती है, हमने उसको एडमिट किया, लाइक हमने सिक्किम को एडमिट किया था. ओके, तो हमने सिक्किम को कुछ टर्म्स पे किया, कल को हमें कोई और टेरिटरी मिलती है, हम उसमें सेम टर्म्स नहीं लगाते, पार्लियामेंट ने उसमें सेम टर्म्स नहीं लगाए. सो यू कैन नॉट गो एंड से कि नहीं आपने सिक्किम के ऊपर ये टर्म्स लगाए थे, तो जो आपको नई टेरिटरी मिली है आप उसके ऊपर भी सेम टर्म्स लगाओ. नहीं, इट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ पार्लियामेंट कि क्या टर्म्स लगाने हैं, क्या कंडीशन लगानी है. जो पार्लियामेंट को फिट लगेगा वो पार्लियामेंट उसके ऊपर कंडीशंस लगा के उसको इंडियन यूनियन में एडमिट कर सकती है. सो इज दिस पावर इज लाइक द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ पार्लियामेंट? नो. सो लेटर देयर वाज अ केस, द नेम ऑफ द केस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. सो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला द पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, कि पार्लियामेंट जो मन चाहे वो कंडीशंस नहीं लगा सकता. देयर शुड बी अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि उसने ये कंडीशन उस स्टेट के ऊपर क्यों लगाई है. ऑल्दो the conditions can differ, but you should have a reasonable fact or law or anything कि आपने ये condition अगर इस state के ऊपर लगाई है तो क्यों लगाई है, give us the reason. Okay, so this power of the parliament is not absolute. Now coming to article 3. So this article 3 says formation of new states and alteration of areas, boundaries or name of existing states. सो आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 2 से हम लोग जो इंडिया के बाहर की जो टेरिटरीज है, लाइक इन द टेरिटरीज जो इंडिया में ऑलरेडी हैं, लाइक द यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट्स,
उसके अलावा जितनी भी टेरिटरीज अगर हमें एक्वायर करनी है तो हम उसको इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग एक्वायर करेंगे पहले, उसके बाद उसको इंडियन यूनियन में एडमिट करने के लिए भी तो कोई लॉ होना चाहिए। सो आर्टिकल 2 इज दैट लॉ के आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि ठीक है, अगर आपने एक्वायर किया है एज अ सॉवरेन स्टेट किसी टेरिटरी को, तो आप इस आर्टिकल के अंडर उसको इंडियन यूनियन में एडमिट कर सकते हो। ओके, एंड आर्टिकल 3 एक्चुअली इज अबाउट द इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट्स। ओके, इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की, उनके ऑल्टरेशन के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट किस तरीके से स्टेट को ऑल्टर कर सकता है या उनके बाउंड्रीज और नेम को चेंज कर सकता है। सो लेट अस सी इन डिटेल कि आर्टिकल 3 क्या बोलता है। सो पार्लियामेंट मे बाय लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or part of state or by uniting any territory to a part of any state. B is increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state and alter the name of any state. So you know this particular this bill जो भी इस आर्टिकल 3 के अंडर जो भी बिल पास होगा, so such bill in the parliament should be introduced by prior recommendation of president sends bill to respective state before recommendation. So अगर आप इस आर्टिकल के अंडर कोई भी पार्लियामेंट अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, सो इट नीड्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट ने वो बिल रिकमेंड किया है तभी पार्लियामेंट उस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा। और प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंड करने से पहले वो जो बिल है उसको रिस्पेक्टिव स्टेट जिसकी बाउंड्रीज चेंज होने वाली हैं उस स्टेट में भेजता है फॉर देयर रिकमेंडेशन। वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इन डिटेल के आर्टिकल 3 जो है वो क्या बोल रहा है। सो द कंसेंट ऑफ स्टेट रिगार्डिंग द बिल इज नॉट कंपल्सरी। आर्टिकल 3 इज रिलेटेड टू द इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो बाउंड्रीज हैं, जैसे हमने देखा कि तेलंगाना का स्टेट बना, या अभी जम्मू कश्मीर का जो पूरा स्टेट था उसको बांट के जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक अलग रीजन बनाया गया। सो देयर इज हमारे मैप में चेंज होता रहता है। सो द पार्लियामेंट हैज दिस पावर टू चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट द एडजस्टमेंट इन स्टेट बाउंड्री। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, अब ये जो स्टेट बाउंड्रीज जो ऑल्टर करनी है या इंटरनल एडजस्टमेंट करने हैं वो पार्लियामेंट किस किस तरीके से कर सकता है। ओके, so parliament can form a new state. So parliament has this power to form a new state by first of all by separation of territory from any state. So मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाए हैं। So first of all जो पार्लियामेंट है वो किसी स्टेट में से कुछ टेरिटरी को निकाल के उस टेरिटरी को एक नया स्टेट बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्टेट है, स्टेट 1। अब उसमें से पार्लियामेंट ने क्या किया, ये जो लाइन है ये इतनी टेरिटरी अलग कर दी और इसको नया स्टेट बना दिया। सो अब ये एक स्टेट हो गया, ये पुराना स्टेट था, अब ये एक नया स्टेट हो गया और ये भी एक नया स्टेट बन गया। नेक्स्ट इज by uniting two or more states. So the parliament can also take this state and then unite them to make a new state. For example, हमारे पास एक स्टेट है S1 और एक स्टेट है S2। अब पार्लियामेंट ने क्या किया, इन दोनों स्टेट की बाउंड्रीज को हटा दिया, ठीक है, तो अब ये बन गया S3, ये एक नया स्टेट बन गया। थर्ड इज बाय यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो अब क्या किया पार्लियामेंट ने इसके अंडर, ये एक स्टेट था हमारे पास और ये था स्टेट 2। अब स्टेट 1 में से ये इतनी टेरिटरी निकाल दी और स्टेट 2 में से ये इतनी टेरिटरी निकाल दी, तो ये टेरिटरी हो गई और एक ये टेरिटरी हो गई, मतलब पार्ट ऑफ स्टेट हो गया, यूनाइटिंग पार्ट ऑफ स्टेट। फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, जो इसमें से ये पार्ट निकाला था और स्टेट 2 में से ये पार्ट निकाला था, इन दोनों को यूनाइट करके ये बना दिया स्टेट 3। सो ये हो गया हमारे पास स्टेट 1 जो पहले था, ये हो गया हमारे पास स्टेट 2, ठीक है, जो हमारे पास पहले था, और ये हमारा बन गया स्टेट 3 जो कि हमारा नया स्टेट है। नेक्स्ट इज बाय यूनाइटिंग अ टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टेरिटरी है छोटी सी, ठीक है, एंड दिस इज अ स्टेट।
सो नाउ व्हाट पार्लियामेंट डिड वाज कि इसको किसी स्टेट, इस स्टेट के इस पार्ट से ज्वाइन करके इस पूरे को एक नया स्टेट बना दिया. सो दिस ऑल्सो कैन बी डन बाय पार्लियामेंट बाय यूनाइटिंग अ टेरिटरी, अ स्मॉल टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरे के पूरे स्टेट्स को मिलाओ. You can take a territory and you can join it with any part of any state. So these are the methods by which the parliament can create new states. Also parliament has power to increase the area of state, ठीक है, by uniting it with some territory or by increasing its area. Also parliament can decrease the area of state. ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट चाहता है कि यूपी इतना बड़ा है, अब मैं यूपी को कम कर देता हूँ थोड़ा सा बिकॉज यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी बाउंड्री को हटा के यहाँ पे उसकी बाउंड्री बना देगा. दिस पावर इज ऑल्सो विद द पार्लियामेंट. नो स्टेट कैन एक्चुअली ऑल्टर द this the boundary of the states. C is change the boundaries of the state. So the parliament can also change the boundaries of the state, or they can also change the name of the state. For example, Bombay, ठीक है, मुंबई हो गया, like they can actually change the name of state, like आंध्र प्रदेश को आंध्रा कर दिया है, and then Telangana, and they also like introduced Ladakh and state of Jammu. They can actually change the name of the state if they want to. Initially in Article 3, the words state was used, but after 18th Amendment Act 1966, in this article from clause A to E, state includes a union territory, but in proviso, state does not include union territory. हाँ जी, so this is very important कि जब हम Article 3 पढ़ते हैं, so पहले क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें हर जगह पे लिखा है फॉर्म अ न्यू स्टेट. यहाँ पे कहीं पे भी यूनियन टेरिटरी नहीं लिखा है इस आर्टिकल में, ठीक है. तो पहले जो है इंडिया में यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं था. सो द स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. Okay, you can read about them in our schedules, the schedules of the constitution. So parts में divided थे states, so there was no concept of union territory. So this concept of union territory came after 18th Amendment Act. So 18th Amendment Act में क्या बोला गया कि ये जो आर्टिकल 3 है, इसमें जहां जहां पे स्टेट लिखा है ना, वो स्टेट का मतलब होगा स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी, ठीक है. तो हमने इसमें यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट भी मिला दिया. सो फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी. मतलब आप इसको समझ लीजिए ये स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी है. सो अब क्या बोला गया है इसमें कि ये जो आर्टिकल 3 है, इसमें क्लॉज ए टू ई तक जहां पे भी स्टेट यूज हुआ है, वहां पे स्टेट का मतलब है यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, ठीक है, स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी. बट जो इस सेक्शन का प्रोविजो है, ठीक है, उसमें यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं किया गया है. So state includes a union territory, but in proviso state does not include union territory. Why it does not include union territory? So उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि proviso जो है इस आर्टिकल का वो क्या कहता है. So its proviso basically says that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament except on the recommendation of president, and unless where proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of the states, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the president may allow, and the period so specified or allowed has expired. So इसका प्रोविजो बेसिकली ये बोलता है कि अगर हम किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का बाउंड्री को ऑल्टर कर रहे हैं, उसके लिए अगर हमें अगर पार्लियामेंट को कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, सो उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए. मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा वो रिकमेंड होना चाहिए बिल पहले, उसके बाद ही वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है. अब जो प्रेसिडेंट है वो ऐसे बिल को, जो इस आर्टिकल के अंडर जो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो जो बिल है वो स्टेट की रिकमेंडेशन के लिए भेजना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल
कि जब आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ था, ठीक है, उसको 2 स्टेट में बांटा गया था या उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर किया गया था, तो प्रेसिडेंट ने वो बिल रिकमेंड किया था। उससे पहले वो स्टेट के पास भेजा गया था, मतलब आंध्र प्रदेश के पास भेजा गया था टू टेल देयर रिकमेंडेशन के व्हाट आर द सजेशंस दैट यू वांट टू सजेस्ट के कहाँ से बाउंड्री ऑल्टर होनी चाहिए, ये और वो, ठीक है। उसके बाद ही उस एक टाइम दिया जाता है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि स्टेट को इतने टाइम में अपने सजेशंस उस बिल के ऊपर देने। अगर वो जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया और स्टेट ने कोई सजेशन नहीं दिया है, तो भी जो है प्रेसिडेंट उस बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकता है पार्लियामेंट में। अगर स्टेट ने कोई रिकमेंडेशन दिया उस बिल के ऊपर कि जी हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से बाउंड्री बनाओ, आप तो लेफ्ट साइड से बना लो बाउंड्री, और प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं नहीं मैं तो राइट साइड से ही बनवाऊंगा, ठीक है, तो भी जो स्टेट का रिकमेंडेशन है इट इज नॉट कंपल्सरीली कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। जो सजेशंस है दे आर मियर सजेशंस, दे आर नॉट कंपल्सरी कि स्टेट ने ये बोल दिया तो अब ये ऐसे ही होगा। प्रेसिडेंट मे एक्सेप्ट इट और मे नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को लगा चलो ठीक है अगर ये ऐसे बोल रहा है तो यहाँ से करवा देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें सिर्फ स्टेट के पास ये बिल भेजा जाता है, यूनियन टेरिटरी के पास ये बिल नहीं भेजा जाता। क्यों? बिकॉज यूनियन टेरिटरी जो है वो तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट के अंडर है, वो तो यूनियन के ही पास है ना, सारी पावर यूनियन टेरिटरी की। सो इसीलिए अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी का ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, लाइक A to E जितने सेक्शंस हैं, जितने क्लॉजेज हैं इस सेक्शन में, ठीक है, तो उनमें अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं, लाइक यू आर ऑल्टरिंग सम टेरिटरीज लाइक यूनियन टेरिटरीज बाउंड्री, या फिर आप 2 यूनियन टेरिटरी को मिला के 1 यूनियन टेरिटरी बना रहे हो, तो उसके लिए आपको वो रिकमेंडेशन के लिए जो बिल भेजना है स्टेट के पास, उसमें यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड हम नहीं करते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि इन दिस आर्टिकल फ्रॉम क्लॉज A to E तक स्टेट जो है उसमें यूनियन टेरिटरी है कि हाँ जी पार्लियामेंट के पास पावर है कि स्टेट की भी बाउंड्री चेंज कर सकता है, या स्टेट को भी डिमिनिश कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है, और यूनियन टेरिटरीज को भी कर सकता है। पर ये जो बिल भेजा जाता है स्टेट के पास, ये जो स्टेट वर्ड है इसमें हम यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड नहीं करते, मतलब किसी भी यूनियन टेरिटरी के पास उसके सजेशन के लिए बिल नहीं भेजा जाता। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली आर्टिकल 3 सेज। और ये यूनियन टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है ये इस आर्टिकल में कब इंट्रोड्यूस हुआ? आफ्टर द 18th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966. So sometimes these amendments and all is also asked, so you can write it down somewhere, और आपको इसके तो PDF मिल ही जाएंगे। Now let us come to Article 4. I hope you all have understood from Article 1 to 3 very well. If you have any doubts, you can ask me on our Telegram group, or you can also comment on this video. Okay, I'll try to answer and I'll try to solve all your queries. So let us come to Article 14. What does Article 14 say? So law made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters. First, any law referred to in Article 2 or 3 shall contain such provisions for the amendment of the first Constitution and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as Parliament may deem fit. Second is, no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of the Constitution for the purpose of Article 368. अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेट अस अंडरस्टैंड इन अ इजी लैंग्वेज के आर्टिकल 4 क्या कहता है। सो पहली बात जो आर्टिकल 4 कहता है, दैट एनी लॉ अंडर आर्टिकल 2 and 3 कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड फॉर दैट पर्पस नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नीडेड। सो इसमें ये लिखा गया है कि जो अभी हमने आर्टिकल 2 और 3 पढ़े हैं, एक तो अगर हम किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं और उसको एज अ स्टेट इंडिया में एडमिट कर रहे हैं, उसके लिए, या हम किसी स्टेट का एरिया बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं या नाम चेंज कर रहे हैं, ऐसे किसी एक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी डन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, के आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, सिंपल मेजॉरिटी से भी आप उस बिल को पास कर सकते हैं, उस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल
नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 क्या है वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बेसिक मैं बता देती हूँ। सो आर्टिकल 368 इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे टू वेन एवर यू हैव टू मेक सम अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए हम आर्टिकल 368 को यूज करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। इट कंटेन्स लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर, लाइक यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग सॉरी, बट उसके लिए हम लोग आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। सो इस आर्टिकल से हमें बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी हम लॉस पास कर रहे हैं आर्टिकल 2 और 3 के अंडर, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाएगा, उसको हम सिंपल बिल मानेंगे और वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है, जैसे कि और कोई सिंपल बिल पार्लियामेंट में पास होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 12th अमेंडमेंट वाज डन टू इंक्लूड गोवा एंड दमन एंड दीव इनटू द यूनियन। तो अब आर्टिकल 4 तो ये कह रहा है कि आप अगर किसी स्टेट को इंक्लूड कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, आप सिंपल मेजॉरिटी से कर लो। पर अगर आप 12th अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जब हमने गोवा को एक्वायर किया था और दमन एंड दीव को एक्वायर किया था, तब 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हुआ था। तो ऐसा क्यों, जब आर्टिकल 4 में दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा उस बिल को, तो हमने गोवा और दमन एंड दीव के लिए ये बिल क्यों पास किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों हुआ। So this was done because in Article 2 only state is mentioned and there is no mention of union territories. So if you see Article 2, okay, let us see. Yeah. So if you see Article 2, यहाँ पे कहीं पे भी यूनियन टेरिटरी नहीं लिखा हुआ है, ना ही इसके किसी प्रोविजन में लिखा है कि इसके बाद हमने इसमें यूनियन टेरिटरीज को भी इंक्लूड कर लिया, जैसे कि 18th अमेंडमेंट से आर्टिकल 3 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो मेंशन्ड है दैट इज स्टेट। सो इफ यू सी दिस इज हियर स्टेट्स, ओके। सो यही हुआ, जो गोवा और दमन एंड दीव था उसको हमने जब इंडिया में इंक्लूड किया था, सो इट वाज इंक्लूडेड एज टेरिटरी, ओके, दे वर इंक्लूडेड एज एक्चुअली टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड नॉट द स्टेट। हमने उनको स्टेट का स्टेटस नहीं दिया था तब, तो इसीलिए उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ा। सो दिस वाज डन बिकॉज इन आर्टिकल 2 ओनली स्टेट इज मेंशन एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। सो व्हेनेवर वी इनकॉर्पोरेट अ टेरिटरी एज अ यूनियन टेरिटरी, वी do not need to do a constitutional amendment as was done in case of Goa and Daman and Diu. So अगर हम कोई भी टेरिटरी को अदर दैन अ स्टेट के स्टेटस से इंक्लूड कर रहे हैं इंडिया में, अदर दैन अ स्टेट, ओके, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना पड़ता है। इफ यू आर टेकिंग इट एज अ स्टेट ओनली, लाइक इट वाज डन इन द केस ऑफ सिक्किम, सो यू कैन एक्चुअली सिक्किम के लिए भी ना एक अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसलिए पास हुआ था बिकॉज इट वाज इन अ डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि हमने उसको एज अ स्टेट अडॉप्ट किया था लेकिन एज अ एसोसिएट स्टेट, ठीक है। तो हमने उसके लिए आर्टिकल 2A मेंशन किया था। बाद में जब उसको हटाया गया तो देयर वर सर्टेन चेंजेस दैट वर मेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए सिक्किम का जो एग्जाम्पल था दैट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, सो उसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा बिकॉज और भी पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के उसकी वजह से चेंजेस हुए थे। सो इफ इन फ्यूचर वी एक्चुअली एक्सेप्ट सम स्टेट इन द स्टेटस ऑफ अ स्टेट, कि वो स्टेट की तरह हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, लाइक उत्तर प्रदेश की तरह कर रहे हैं या कोई भी स्टेट ले लीजिए, ठीक है, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदर दैन अ स्टेट के स्टेटस से, या तो यूनियन टेरिटरी हो गई या कुछ भी, कल को हमें एक बैरन लैंड मिला, ठीक है, लाइक अंडमान एंड निकोबार, ऐसे हमें कोई बैरन लैंड मिला, अब हमने उसको एज अ यूनियन टेरिटरी इंडिया में इंक्लूड किया, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हमने उस टेरिटरी को एज अ स्टेट इंक्लूड किया तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वन मोर थिंग, ओके, सो अब हमने इसमें पढ़ा कि आर्टिकल 2 और 3 में दिया गया है कि हम कैसे इंक्लूड कर ले इंडिया में कोई भी टेरिटरी, बट ऐसा तो कहीं पे दिया नहीं हुआ कि हम किसी कंट्री को अपनी टेरिटरी दे भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया कोर्ट के पास
in the case of Berubari Union. So this is a very important case, and if you are writing any of your answer related to Article 1 and 4, like from 1 to 4, okay, so you must mention this case because this is a very important or a landmark judgment kind of thing. So this question was referred to by the Supreme Court by President in 1960. So 1960 में what actually happened was कि there were certain enclaves of Berubari Union. अगर आप देखेंगे बांग्लादेश और बंगाल के बीच में जब डिवीजन हुआ था in 1960, so there was clash के हम जब divide करेंगे, so it was conflicted area. This Berubari Union was a conflicted area कि हम ये part हम एक्चुअली पाकिस्तान को देने का सोच रहे थे. लाइक पार्लियामेंट एक्चुअली सजेस्टेड कि वी शुड गिव दिस एनक्लेव टू पार्लियामेंट. तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इस डिसीजन का पार्लियामेंट के. तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, ये क्वेश्चन रेफर किया सुप्रीम कोर्ट को. सो दैट इज वाई इट इज रिटन एज दिस केस इज बेसिकली रिटन एज RE Berubari Union case. So in 1960, Parliament decided to transfer certain territories to Pakistan under Article 3C. So if you see Article 3C, 3C क्या बोलता है कि Parliament can diminish the area of a state. So Parliament ने क्या किया कि वो जो diminish वाला पार्ट है, उन्होंने कहा जी हम तो बंगाल का जो एरिया है वो स्टेट है इंडिया का, हम उसको डिमिनिश कर रहे हैं, हमने ये पार्ट दे दिया पाकिस्तान को, हम तो डिमिनिश कर रहे हैं उसके अंडर. तो इसके लिए तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है. सो दिस एक्शन वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड. सो व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट सेड? सो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट, आर्टिकल 3, अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सिसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी, अब ये जो 3C है ना, इसके अंडर आप एरिया तो डिमिनिश कर सकते हो किसी स्टेट का, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल ये इतना स्टेट है उसको हमने इतना किया, तो ये वाली जो टेरिटरी है ना ये भी इंडिया में ही रहनी चाहिए. यू कैन नॉट गिव इट टू अ फॉरेन कंट्री. ठीक है. सो आर्टिकल 3 के अंडर यू कैन नॉट गिव इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन टेरिटरी इन द नेम ऑफ डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ अ स्टेट. Hence, Indian territory can be seceded to a foreign state only by amending the constitution under Article 368. So, Supreme Court also said कि अगर आपने ये एरिया देना है किसी और कंट्री को, तो आपको आर्टिकल 368 के अंडर इसको मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा. उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा अलग से. ठीक है. यू कैन नॉट पास इट बाय सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट. So consequently, the 9th constitutional amendment was enacted to transfer the said territory to Pakistan. So उसमें क्या हुआ फिर कि जो 9th constitutional amendment act था वो पास किया गया और वो जो टेरिटरी थी बेरूबारी यूनियन की वो पाकिस्तान को ट्रांसफर करने का सजेशन लिया गया. बट what happened was कि because there were many clashes and there were many reasons जिस वजह से वो चीज़ नोटिफाइड नहीं हो पाई थी. सो उसको इफेक्ट देने के लिए लाइक 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपने मेंशन कर दिया कि हमने ये पार्ट इसको देना है, बट एक्चुअली वो किस चीज से ट्रांसफर हुआ, इफेक्ट किस चीज से आया, 100th अमेंडमेंट एक्ट से. ठीक है. सो द 100th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास टू गिव इफेक्ट टू द सच एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज. कि 9th में आपने मेंशन कर दिया हम ये टेरिटरी हम ये लेके आएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, बट एक्चुअली आप उसको इफेक्ट में लेके आए 100th अमेंडमेंट एक्ट से. ठीक है. सो द 100th अमेंडमेंट एक्ट इज लाइक अ ratification of 9th constitutional amendment act. So this is the relation between 9th and 100th constitutional amendment act. Do not get confused with it. Okay. So इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया. However, Supreme Court in 1969 ruled that settlement of a boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment. It can be done by executive action as it does not involve secession of Indian territory to a foreign country. So in 1969 सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो अगर आप इंडिया की टेरिटरी किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन अगर आपका किसी कंट्री के साथ बॉर्डर लाइन का डिस्प्यूट है, लाइक थोड़ा बहुत एरिया का डिस्प्यूट है कि ये लाइन इधर होनी चाहिए कि ये लाइन इधर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो जो है वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी आप कर सकते हो. लाइक प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर करेगा
तो वो उससे भी बाउंड्री डिस्प्यूट को क्लियर किया जा सकता है। उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेसीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। कि आप उसमें जो इंडियन टेरिटरी है उसको सेसीड नहीं कर रहे हो किसी और कंट्री को, यू आर जस्ट सेटलिंग अ बाउंड्री डिस्प्यूट विद सम अदर country. Okay, for example, like this is the line, actual line, and there is a dispute with, for example, India and China. So you like the China is saying कि नहीं नहीं यहाँ पे होनी चाहिए लाइन। सो अगर इतना डिफरेंस है, लाइक माइनर डिफरेंस के ये लाइन ऐसे होनी चाहिए या ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, तो उस चीज के लिए आप किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से भी वो जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस was all about Article 1, 2, 3 and 4. I hope you have understood each and every article well कि कौन से वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। और यू नो इफ यू आर गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दिस, मैंने ये सारा इसलिए लिखा है इतना, सो दैट यू नो यू डो नॉट हैव टू लुक इनटू बुक्स एंड एवरीथिंग। यू कैन जस्ट गो लुक एट दिस पीडीएफ. दिस पीडीएफ इज लाइक मोर देन इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड what article 1, 2, 3 and 4 is. और इसमें मैंने जो important cases है उनके बारे में भी आपको बताया, बेरुबारी यूनियन केस. So do remember this case, and if you have time to read, so you can also read this particular judgment case में क्या बोला गया था. Okay, so yes, this is all about this lecture from article 1 to 4. In next lecture we will cover the further articles. So please join our telegram group and also keep following, keep learning. I'll see you in the next lecture. Till then, take care and bye bye.